Hello students, welcome to online English class. For last 2 days, we have completed the writing skills, that is application, and students, before that we have completed some of the grammar skills as tense and active passive voices, and today I am going to make a description about the very important part of grammar and the beginning, that is called determiners. तो आज मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊंगी determiners के बारे में. Okay, actually you will know about that completely so that in your further grammar uses you could not make a mistake. कि मतलब आज आप अगर determiners के बारे में सीखते हैं तो not only the academic but also the competitive level you will not face any type of difficulty. So let's see here determiners. Okay, so just know that what is determiners. Firstly, be sure about that what is determiners कि आखिर determiners है क्या. Determiner is a word that tells us how the noun is being used in a sentence. Determiners एक ऐसा word है जो हमें ये बताता है कि noun का use हमारे sentence में किस तरीके से हो रहा है. Okay, so let's see. This is the definition. Keep remember and keep revising also. So the first one is of article. I wish to tell you that the first one is article. After that you will know about possessive, then interrogative, then distributive, and also demonstrative, even adjective of quality, adjective of quantity, means number and quantity, fractional. There is a wide area of determiners. So today, according to the modern English, it has been compiled. Articles have been compiled. कि आज की अगर हम modern English में देखें तो ये जो articles हैं इनको अब हम determiners category में लेते हैं, जिसमें काफी सारे आपको section wise grammar के जो proper skills हैं उनको देखने का आपको मौका मिलेगा. आप उसको सीखेंगे भी और समझेंगे भी. तो articles, I think since the beginning you have read about, you have studied about the articles. So don't worry about it. Let's start. Articles. You know very well, articles are of two types. Okay, A and N. A and are in the category of indefinite article. Firstly know about the category के इनका जो categorization करते हैं, वर्गीकरण कहेंगे हम इसको. तो A और N को हम indefinite category में रखते हैं. After that जो आपका दा होता है, this is डेफिनेट आर्टिकल, कि जिसको हम केवल कुछ डेफिनेट जो हमारे स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं उनके साथ में यूज करते हैं. ओके, सो नंबर वन. सो जनरली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि ए का यूज जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ में होता है. यू नो वेरी वेल, आई हैव ऑल्सो गिवन सच एज दिस इज अ टॉय. टॉय इज अ नाउन एंड हियर वी हैव यूज्ड आ. स्पीक ए ऑल्सो. एलेक्सा इज अ प्रेटी गर्ल. Here is the difference. यहाँ difference क्या है कि pretty is an adjective. Pretty means सुंदर, खूबसूरत. तो Alexa जो है वो एक खूबसूरत लड़की है. ओके, तो girl is a noun, और noun से पहले जो adjective है उससे पहले हमने लगाया है ना. Alexa is pretty और girl नहीं लिखा. So keep remember कि when we are going to use a noun and before the noun there is an adjective and before adjective we have to keep a article. ठीक है, कि आपको proper place पे कहां article को use करना है. तो it means कि अगर noun के साथ में adjective का use हो रहा है तो adjective से पहले ही आप a का use करेंगे. ओके, नंबर 3 इसको देखिए. There was a fairly tall boy. There was a fairly tall boy. Here you found only noun. Here you have found adjective and noun, and here you have found again adverb, adjective and noun. मैं आपको different way में करा रही हूं. मतलब there should not be any error, any blank space of misunderstanding, कि कोई ऐसा खाली स्थान नहीं रहना चाहिए कि जहां आपको समझ में ना आए. ओके, तो there was a fairly tall boy. Fairly, that is adverb, tall, adjective and boy, noun. And here we have used here article, that is indefinite article. So also keep remember that where noun, adverb and adjective
3 आर देयर, यू हैव टू यूज बिफोर एडवर्ब, कि आप इसको नाउन से पहले जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले भी जो एडवर्ब होगा वहां आपको इसको यूज करना है. बी कॉन्शियस अबाउट इट. क्लियर? द नेक्स्ट अबाउट सम ऑफ द स्पेसिफिक एंड स्पेशल रूल्स. यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. आप जानते हैं कि आप इसको किसके साथ यूज करने वाले हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. काउंटेबल नाउन मैंने आपको नाउन वाले वीडियो में, आप अगर चाहें तो इफ यू विश यू कैन चेक दैट, कि मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है. यहां भी बता देती हूँ. काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गणनावाचक होता है, इसकी गिनती की जा सकती है. फॉर अ क्लास ऑफ थिंग्स. क्लास ऑफ थिंग्स मतलब एक ही टाइप की कोई भी चीज होती है. एक क्लास होता है जिसका एक कह सकते हैं कि एक ही कैटेगरी में जिसको हम काउंट करते हैं. आई विल टेल यू बाय गिविंग द एग्जांपल्स. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, नंबर वाली जो आपके नाउन होते हैं, जो कहां किस तरीके से यूज किए जाते हैं. तो जहां न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होता है वहां भी आप ए आर्टिकल का यूज करते हैं. तो नाउ सी हियर, पेट्रोल सेल्स 40 रुपीज अ लीटर. सी वंस अगेन, पेट्रोल सेल्स 40 रुपीज अ लीटर. आ का जो मीनिंग है यहां पर वो हिंदी में अगर कहेंगे तो प्रति के लिए आया है, बट हियर इज ऑल्सो एन आर्टिकल हियर. ओके, तो अ हैज बीन यूज्ड हियर एज एन आर्टिकल. तो एक आपका मेजरमेंट के साथ में हमने यहां पर इसको आ को यूज किया, अ लीटर, बट प्रति इसका मीनिंग है. इसको आपको याद रखना है विशेष रूप से, स्पेशली. नंबर 2, अप्लाई दिस ऑइंटमेंट ट्वाइस अ डे. हियर इज अ टाइमिंग पीरियड कि ट्वाइस अ डे, एक काउंटिंग लेवल पे जा रहे हैं कि अप्लाई दिस ऑइंटमेंट ट्वाइस अ डे. एक दिन में 2 बार आप इस ऑइंटमेंट को अप्लाई करें. ट्वाइस अ डे यानी कि एक दिन के लिए यहां पर आया, ट्वाइस इससे पहले आया. ठीक है. आफ्टर दैट, आई शैल स्टे हियर फॉर अ कपल ऑफ डेज. कपल ऑफ डेज मीन्स कि कपल ऑफ डेज, देयर इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज, कि कोई निश्चित दिन नहीं है. तो एक जहां पर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, एक ग्रुप में जहां कर सकते हैं. ओके, तो कपल ऑफ डेज के लिए हमने यहां पर अ का यूज किया, क्योंकि आप डोंट हैव एनी कंफ्यूजन कि डेज आया है तो अ कैसे लगा सकते हैं. इट्स अ यूनिट, इट्स अ कंपाइलेशन, एक इकट्ठा किया हुआ है, इसको गैदरिंग में है. फिर अ ग्रॉस ऑफ बिल्डिंग्स हैज बीन डैमेज्ड. ग्रॉस कितना होता है? 144 को हम बोलते हैं, 144 जो नंबर्स होते हैं हमारे. तो अ ग्रॉस ऑफ बिल्डिंग्स हैज बीन डैमेज्ड. बिल्डिंग्स का एक कंपाइलेशन है, तो कीप रिमेंबर कि जहां हम कंपाइलेशन का यूज कर रहे हैं तो वहां भी हमारा आर्टिकल ए ही यूज होगा. क्लियर? आफ्टर दैट, ही इज द डैनियल ऑफ विजडम. अ डैनियल ऑफ विजडम. डैनियल क्या होता है? डैनियल मीन्स बुद्धिमान, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है. उसको हम विद्वान नहीं कह सकते, विद्वान का तो इंटेलेक्चुअल होता है एक्चुअली, जिसकी विजडम पावर बहुत अच्छी होती है. तो ही इज द डैनियल ऑफ विजडम. इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि वो डैनियल है, दैट्स नेम इज डैनियल, इट्स अ क्रिश्चियन नेम. ही इज अ डैनियल. तो डैनियल ऑफ विजडम मतलब क्या है? वो डेनियल जैसा बुद्धिमान है. बुद्धिमानी में वो क्या है? डेनियल जैसा. वो डेनियल नहीं है, डेनियल जैसा बुद्धिमान है. इट्स अ कंपैरिजन. क्लियर? आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ही इज दारा सिंह ऑफ करेज, है ना, कि उसका जो करेज है वो दारा सिंह नहीं है, उसका करेज दारा सिंह जैसा है. तो मतलब एक स्पेशली उसकी क्वालिटी यहां पर निकल करके आती है. क्लियर? तो यहां आपने ए को यूज किया, यहां आपने कंपाइल के लिए यूज किया. आफ्टर दैट, अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर. कीप रिमेंबर, इट्स अ सिंगल पिक्चर. एक ही पिक्चर है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है. अगर मैं यहां पर अ ब्लैक एंड अ व्हाइट पिक्चर कर दूं तो हियर आर 2 पिक्चर्स, 2 पिक्चर्स हो जाएंगी, है ना, और एंड लगा हुआ है. तो हियर इज अ, सिंगल के लिए हमने अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर किया. अ पियन एंड अ, हमने यहां 2 अलग अलग कर दिए. अ पियन एंड अ नाइट गार्ड, ये 2 अलग अलग हो गए, वहां भी आपने अ का यूज किया. आफ्टर एंड, एंड लगा हुआ है. अ बुक इज यूजफुल. बुक कोई भी हो, इज देयर एनी बुक? एवरी बुक इज यूजफुल, कि हर एक बुक हमारी यूजफुल होती है, उपयोगी होती है. सिमिलरली कि एक क्लास को बताता है. सपोज दैट कि आई टोल्ड यू दैट अ हॉर्स इज एन एनिमल. एक घोड़ा है, वो जानवर है. अब वो किसी भी लेवल से आप देखें उसको, वो होगा जानवर ही, चाहे वो शाही घोड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी घोड़ा हो सकता है. देयर इज एन एनिमल, कि उसको हम एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे. इन द सेम वे अ बुक इज यूजफुल. तो बुक जो है वो क्या है? यूजफुल है, आपके लिए उपयोगी है, और सारी बुक्स आपकी यूजफुल होती हैं. तो इस तरीके से इसने एक क्लास को डिफाइन किया कि हाँ, हर एक बुक यूजफुल होती है. So today I have told you about use of up, and be conscious
अबाउट इट कि आपको यहां कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. इट्स वेरी इजी. इट्स फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू नो अबाउट डिटरमाइनर्स, कि आप फर्स्ट टाइम इसको जान रहे हैं, पता चल रहा है आपको कि डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में, क्योंकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है. अदरवाइज इट वाज डिफरेंट, कि वो एक अलग था. टुमारो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एन, यूज ऑफ एन एंड डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल है, बट डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू नो बाय यू. Okay, so students and learners, if you have got it perfectly, please keep practicing, keep revising and keep learning. If you are learning, my mission is successful. कि अगर आप सीख रहे हैं, आप उसका अभ्यास कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, तो ये मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल है. जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, दिस इज ओनली फॉर योर वेलफेयर, कि आपकी भलाई के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है. So friends, so students, if you have liked it, don't forget to press the bell icon, subscribe it and share it with your friends so that so many students, कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करें, जिससे वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएं, सीख पाएं और समझ पाएं. एंड डोंट फॉरगेट टू कीप कमेंटिंग, और उसमें आप कमेंट करना ना भूलें कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, कहां कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जहां आपको समझ में नहीं आता है. प्लीज उस पार्ट को आप मुझे बताएं, सो दैट आई कुड क्लैरिफाई यू वंस अगेन, जिससे दोबारा मैं आपको बता सकूं. एंड वेट फॉर द होमवर्क and do it properly. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice time.